Good morning, student. We'll begin with lecture number 16, Unit 2, Simple Stresses and Strain. Topic today we'll study is type of strain. In our previous lecture, we have studied different types of stress. We have studied different type of body. We have studied different type of force. We have studied different type of properties of metal. Now we will study types of strain. Strain. When a body of elastic material is acted upon by an axial force, it undergoes change in dimension. This change in dimension per original dimension is called as strain. Strain is equal to change in dimension divided by original dimension. Note that strain has no unit. Type of strain. Strain is classified. Types of strain. Strain is classified according to application of load and mode of deformation. स्ट्रेन जो है अलग अलग लोड जैसे अप्लाई होता है और लोड होने के बाद जिस प्रकार से बॉडी डिफॉर्म होता है, चेंज होता है उसका शेप, उसके बेसिस पे टाइप्स डिसाइड किया गया, निराधार किया गया. टाइप ऑफ स्ट्रेन. नंबर 1, linear strain or longitudinal strain. In that we have two different types: tensile strain, B, compressive strain. Number 2, lateral strain. Number 3, volumetric strain. Number 4, shear strain. First type, linear strain. When the body of elastic material is subjected to load, then there is change in length in the direction of applied force. This change in length per original length is called as linear strain. It is denoted by E. Tensile strain and compressive strain are linear, is where E is equal to linear strain, delta L change in length, L original length. Strain is the ratio of two similar quantities, hence it has no unit. Linear strain is also called as longitudinal strain, biprimary strain, or simply strain. Sign convention. Generally, tensile strain is taken as positive, whereas compressive strain is taken as negative. हमने देखा है स्ट्रेन यानी क्या है कि जब लीनियर स्ट्रेन की बात चालू है, अब सामने एक उदाहरण आपके सामने ड्राइंग दिया गया है, एक बार दिया गया है, सस्पेंडेड है, यानी ऊपर अगर आप देखेंगे 3 क्रॉस लाइन से, यानी ऊपर से वो सस्पेंड टंगाया गया है, उस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाइड है. अब जब फोर्स अप्लाइड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन वो खींचे जाएगा. तो अब बाजू के राइट साइड के डायग्राम में देखिए, L जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, फोर्स की वजह से उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं DL इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ हुआ तो यानी डिफॉर्म हुआ, ओरिजिनल लेंथ से चेंज हुआ. ठीक है, तो ये जो DL है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, DL डिवाइडेड बाय L, ये है स्ट्रेन. DL डिवाइडेड बाय L, ये है स्ट्रेन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्ट्रेन. अब ये लीनियर क्यों है? क्योंकि फोर्स अप्लाइड जो है वो भी लीनियर फोर्स या एक्सियल फोर्स है.
यहाँ पे फोर्स आप देखिए, और पिछले जो लेक्चर में हमने स्लाइड दिया वो देखिए, ये कोएक्सियल है, यानी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और सेंट्रोइडल एक्सिस जो है, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस कहेंगे आप, यहाँ पे वर्टिकल है बार, तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस वाई वाई हुआ है, सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस, तो वो फोर्स और सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस एक ही लाइन में है, इसलिए हम लीनियर फोर्स है या एक्सियल फोर्स है। और उस फोर्स की वजह से जो चेंज हो रहा है लेंथ में, लीनियर चेंज हो रहा है, इसलिए इसे हम लीनियर स्ट्रेन कहेंगे, इसे हम लीनियर स्ट्रेन कहेंगे। नेक्स्ट, लैटरल स्ट्रेन। अब हमने देखा है 4 प्रकार है, पहला लीनियर, ठीक है, दूसरा है लैटरल। लैटरल यानी साइड की बाजू, लैटरल यानी बाजू वाला, यानी साइड में, साइड या बाजू वाला, ओके, ठीक है। लैटरल साइड से, जैसे हम कहते हैं ना, लैटरली साइड से, ठीक है। तो लैटरल, डिफाइंड लैटरल स्ट्रेन, व्हेन द बॉडी ऑफ इलास्टिक मटेरियल इज subjected to load, then there is change in lateral dimension, that is change in width, change in thickness in case of rectangle bar, and change in diameter in case of circular bar. This change in lateral dimension to the original lateral dimension is called as lateral strain or secondary strain. Through this diagram, we will try to understand what is lateral strain. We have here above a bar in which two forces P acting coaxially or linearly, wherein the line of action of force PP is coinciding with the longitudinal axis given by the brown line passing through G. L is the length and T the thickness. This is the picture before deformation. After gradually we start applying the load, we see the second picture, that is figure B, in which it is a picture after deformation. Deformation होने के बाद का पिक्चर फिगर बी में दिया गया है। अब इसमें आप देखिए, पिक्चर ए में पूरा ब्लैक आउटलाइन में बार था, पिक्चर बी में ओरिजिनल जो है ब्लैक आउटलाइन का था। अब जो नया डिफॉर्म हुआ है वो रेड कलर आउटलाइन में बार दिखाई गया। तो आप देखिए, बार की लेंथ जो है बढ़ चुकी है लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन से, राइट और लेफ्ट में देखिए dl/2 dl/2, दोनों बाजू से लेंथ बढ़ चुकी है। लेकिन जैसे लेंथ बढ़ी है, इसमें दूसरा चेंज क्या हुआ, उसकी थिकनेस जो है कम हो गई। डायग्राम में साफ साफ दिखा देता है, ब्लैक आउटलाइन बड़ा है, थिकनेस ओरिजिनली T, और जो रेड कलर में उसकी थिकनेस आप देखेंगे वर्टिकली वो कम हो गया है, दोनों बाजू से dt/2 कम हुआ है, ठीक है। तो दोनों बाजू से हो गया कम dt/2, तो इतना थिकनेस कम हो गया। अब लैटरल स्ट्रेन यानी क्या, ये जो लैटरल साइड है यानी उसकी थिकनेस या उसकी विड्थ, उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसके बारे में। ओके, सो व्हाट इज लैटरल थिकनेस? lateral strain is equal to change in lateral dimension divided by original lateral dimension. अब रेक्टेंगल बार के लिए lateral strain क्या है? चेंज इन विड्थ या B बाय चेंज ओरिजिनल विड्थ B, या जैसे हमने पुराने डायग्राम में देखा है dt/t और डेल्टा t/t और dt/t, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमने क्या देखा था, लीनियर देखा था, लीनियर में लेंथ का था। अब यहाँ पे
फोर्स अप्लाइड करने की वजह से जो उसके विड्थ में या थिकनेस में जो चेंज होता है उसके ओरिजिनल डायमेंशन से, तो उसे हम लैटरल डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। वेयर B is equal to original width or breadth, dB is equal to change in width। ये हमने B का हमने डायग्राम में नहीं बताया, हमने T का बताया। T is original thickness, dt is change in thickness। I hope it is clear to you। वैसे ही अगर हम रेक्टेंगल बार की जगह सर्कल बार लेते हैं, सर्कुलर बार, और सेम केस होता है, तो इसमें जो लैटरल चेंज होगा वो होगा डायमीटर। डायमीटर कम या ज्यादा होगा, तो यानी चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, वेयर डी इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमीटर, डेल्टा डी इज चेंज इन डायमीटर। सो चेंज इन डायमीटर divided by original diameter is lateral strain। अब यहां पे कुछ चीज ध्यान में रखनी चाहिए। When axial tensile force acts on a body, then its length L increase but width B and thickness D decrease। अब यहां पे हम देखें टेंसाइल फोर्स यानी टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन और अवे पुल कर रहा है, बॉडी को पुल कर रहा है, खींच रहा है दोनों बाजू। तो इसमें क्या होगा, आपकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेंथ बढ़ेगी तो उसकी विड्थ जो है और थिकनेस जो है वो छोटी हो जाएगी। हमने फिगर में पहले देख चुके हैं, वही केस है यहाँ पे। अब दूसरा केस मान लीजिए, व्हेन एक्सियल compressive force acts on body, then its length decreases but width B and thickness D increase। अब उसका अपोजिट मान लीजिए, कॉम्प्रेसिव फोर्स पुश, हमने स्ट्रेस में स्टडी किया है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पुश, एरो दोनों अंदर के बाजू टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये अंदर के बाजू दबा रहा है, अंदर के बाजू जो बॉडी को दबा रहा है, या मान लीजिए कोई डब्बा है उसको हम अंदर के बाजू से दबा रहे हैं, ठीक है, तो उसका लेंथ कम होता है, ठीक है, लेकिन लेंथ कम होता है तो क्या होता है, विड्थ उसकी जो है लैटरल डायरेक्शन में विड्थ या थिकनेस बढ़ती है, विड्थ या थिकनेस बढ़ती है। हेंस इसीलिए लैटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज सेट अप इन अपोजिट नेचर टू दैट ऑफ लीनियर स्ट्रेन, अपोजिट नेचर टू दैट ऑफ लीनियर स्ट्रेन। तो मान लीजिए लीनियर स्ट्रेन में लेंथ बढ़ता है तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन की जो विड्थ या थिकनेस है कम होती है। मान लीजिए कॉम्प्रेसिव फोर्स में लेंथ कम होता है तो लैटरल स्ट्रेन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है, वो बढ़ता है, ठीक है। Volumetric strain, when the body of elastic material is subjected to external forces on its face, then there will be change in its volume. This change in volume per unit volume is called as volumetric strain. It is denoted by E subscript V. So EV is nothing but change in volume divided by original volume, where EV is equal to volumetric strain, delta V is equal to change in volume, V is equal to original volume। Note, volumetric strain is the algebraic sum of all linear strain, algebraic sum of all linear strain। वॉल्यूमिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V divided by V, delta V divided by V, that is volumetric strain।
फोर्थ इज shear strain। हमने पहले shear stress देखा था, उसके पहले लेक्चर में shear force देखा था। ये फोर्स एक्ट करता है टेंजेंशियली टू द क्रॉस सेक्शन। लीनियर फोर्स एक्ट कैसे करता है? लीनियर फोर्स कोएक्सियल, यानी line of action of linear force coincides with the line of longitudinal axis। shear force में longitudinal axis को ये coincide नहीं करता है, बल्कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है उसको टेंजेंशियल है, यानी थोड़ा बहुत ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन का प्लेन है वहां को टेंजेंशियल है, यानी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो जा रहा है उसको परपेंडिकुलर आता है, उसको ये परपेंडिकुलर। तो आप shear strain यहाँ पे देखते हैं कैसा है। When an angular deformation occurs at right angles of edges of body due to application of two equal and opposite tangential force, then such change in angle measured in terms of ratio of opposite side to the adjacent side is called as shear strain। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दो डायग्राम दिया है, लेफ्ट में राइट में। लेफ्ट में देखिए डायग्राम, पहले ब्लॉक है पी क्यू आर एस, एजेस देखिए पी क्यू आर एस। दो एरोस दिए हैं, नीचे एक अपोजिट डायरेक्शन में पी और उस लेफ्ट साइड जो जा रहा है, और ऊपर टॉप में राइट साइड में पी। दो फोर्सेस दिए हैं, ये फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये फोर्स कैसा एक्ट कर रहे हैं? टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं बॉडी को। अब ऊपर के फोर्स पी से क्या होता है? आर एस जो है वो ढकले जाता है, तो आर एस का पोजीशन नया होता है R1S1, और नीचे जो बेस है पी क्यू वो जगह पर ही रहता है, क्योंकि हमने नीचे देखा है वो फिक्स्ड है, बेस पी क्यू फिक्स्ड है, तो ऊपर का फ्री है तो ऊपर का ढकले जाता है। तो पी एस अगर हम देखते उसकी एक साइड वो ढकल के नई पोजीशन आती है PS1। वैसे क्यू आर जो पुराना पोजीशन था उसके साइड का, वो जब उसे डिफॉर्म शेप होता है तो क्यू आर बन जाता है। अब PS और PS1 ये दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, जिस एंगल फाई से हमने मेंशन किया है। वैसे ही क्यू आर और क्यू आर वन दोनों के बीच में वही एंगल फॉर्म होता है जिसे हमने फाई मेंशन किया है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ओके, ये दर्शाता है, ये दिखाता है आपका shear strain। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। Consider a block PQRS which is fixed at the base. PQ acted upon by two equal and opposite tangential forces P as shown in figure. Due to applied forces P, shear stress Q is developed and the block PQRS either tends to slide over the other body or to shear away from other part across any section XX shown in figure. As a result of the shear force, SR will deform to S1R1 such that SS1 is equal to RR1. The block at the base PQ will not deform because it is fixed at the base. The side RQ has laterally moved to the position R1Q, turning through a small angle. फिर से हम देखते हैं S और S1 इज इक्वल टू R1, ठीक है। यहाँ पे बीच में एंगल फाई दिया गया है। अब
tan ऑफ फाइव क्या होता है? tan ऑफ फाइव अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी S1 डिवाइडेड बाय PS, S1 डिवाइडेड बाय PS, और R1 अपोजिट में है, R1 डिवाइडेड बाय RQ, और द साइड RQ. I hope you understood this. So mathematically we can write as tan of phi is equal to R1 divided by RQ. Phi is equal to R1 divided by RQ. Since phi very small, hence since phi is negligible, hence tan phi is equal to phi. Since phi is negligible, tan phi is equal to phi. So in short, the ratio R1 to RQ is called as shear strain, and it is denoted by phi. It is denoted by phi. Dear student, this is the end of lecture number 16. Remember here that as far as exams are concerned, there is less of theory. There is more of, in theory, there is more of definition. Fine. But you need to understand the concept. So I am taking all this theory. I hope till now in unit 2 you have understood. We have begun with the properties of metal. Then we have begun with type of force. We have begun with type of body. We have begun with shear. We have begun with type of stress: linear stress, tensile, compressive, shear, eccentric, bending stress. Then in strain, linear strain, lateral strain, volumetric strain, and shear strain. Okay, so just try to remember. आप ये इमेजिन कर दीजिए, आपको याद रहेगा. Fine. Thank you, student. Thank you.